Hello students, in the last lecture I explained to you about the introduction regarding sustainable development goals. Sustainable development goal children, I told you the history, how in the year 2000 they had framed some millennium development goals, and with those millennium development goals का जो deadline था it was 2015. So 2015 चिल्ड्रन हमने पूरा का पूरा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को इवेल्युएट किया था कि कौन कौन से फील्ड्स में हम लोग सक्सेसफुल हुए हैं. अच्छा, व्हाट आर द फील्ड्स इन विच वर लैगिंग बिहाइंड और वी हैड डेविएटेड फ्रॉम आवर टारगेट्स. एंड इन सितंबर 2015 वी हैड फ्रेम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. दे आर इन शॉर्ट आल्सो नोन एज SDG. Children, talking about the sustainable development goals, one thing we need to understand, which I already told you in the last lecture, is that development and growth are two different concepts. Development and growth are two different concepts. One talks about quantitative improvement, whereas development talks about some qualitative improvements. So many years, children, we have been achieving a lot of growth, we can say, but have we really converted that into development? Have we improved on the quality of life of the people in our country? Those are the questions which were haunting us. So the world leaders came together and they have formulated some 17 different goals in the year 2015, that's September, and they were to be achieved by the end of 2030. So 15 साल है हमारे पास, ये जो गोल्स है अपने सामने उनको हम लोग अचीव करना चाहते हैं. अभी सवाल आता है कि व्हाट वर दिस गोल्स रिलेटेड टू. द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चिल्ड्रन इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, एंड along with that children we also have environmental sustainability. So whenever you are making growth, you make sure that you pay lot of attention to इकोनॉमिक, पैसा तो कमाना ही है हम लोग को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है. एट द सेम टाइम चिल्ड्रन वी हैव टू आल्सो फोकस ऑन सोशल वैल्यूज, एंड नॉट ओनली सोशल वैल्यू चिल्ड्रन, ऑल दिस विल बी यूजलेस इफ यू आर कॉजिंग डैमेज टू द एनवायरमेंट. सो इट्स लाइक इकोनॉमिक, सोशल एंड environmental perspectives which are considered when they noted down the sustainable development goals. Sustainable word का meaning बताया था मैंने आपको कि when you are fulfilling the needs of the present generation, you make sure that the future generations will be able to satisfy their own needs, and leaving no one behind, सबके साथ सबका विकास. That's what I told you in the last lecture. Now children, sometimes they ask you a question in the exam जहाँ पे आपको बोला जा सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बताओ करके. 17 के 17 तो नहीं आते, लेकिन they might ask you some of them, right? So we have got some trick or we have got some shortcut how to remember these goals. ये goals को हम लोग याद कैसे रख सकते हैं, उसके लिए हम लोग को शॉर्टकट देखते हैं. तो सबसे पहले लेट मी नरेट टू यू अ स्मॉल स्टोरी, और उस स्टोरी में से हम लोग कुछ गोल्स बनाते जाएंगे बच्चे लोग. ओके, सो द स्टोरी गोज लाइक दिस चिल्ड्रन. देयर वाज दिस पुअर बॉय, एक गरीब लड़का है, ठीक है, जैसे बता रहा वैसे याद रखना उसको. अच्छा, ही हैज गॉट नो फूड टू ईट, खाना नहीं है. अच्छा, नो वन इन द फैमिली इज वेल, इसका मतलब कोई ना कोई बीमार होता है घर पे. अच्छा, नो वन इज एजुकेटेड इन द फैमिली, मतलब कोई भी ठीक से पढ़ा लिखा नहीं. अच्छा, याद कैसे करो, देखो, हाँ, एक गरीब लड़का भूखा है, बीमार रहता है और पढ़ा लिखा नहीं है. दैट मीन्स ही हैज गॉट ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी कैन से. सो अ पुअर बॉय, नो फूड टू ईट, नो वन इज वेल इन द फैमिली, नो वन इज प्रॉपरली एजुकेटेड. अच्छा, then what happens here, his sister wears a पर्दा. उसकी सिस्टर है जो जब भी बाहर जाने का रहता है तो she wears that बुर्खा, या फिर पर्दा पहन के जाती हो, व्हील. अच्छा, क्यों बाहर निकलती है? तो she has to go a long way to fetch water. बहुत दूर जाके उसको घर के लिए क्या लाना पड़ता है? पानी लाना पड़ता है. अच्छा, she cooks food on चूल्हा. indirectly children here so many things are covered, like na, first of all, like
when she wears a burqa, what do we understand, children? That she is discriminated because she is female. Why she has to go to fetch water? Obviously because the water is not coming to her home. Acha, why she has to cook on chula? Because she is not getting what is called as the LPG, फिर गैस नहीं मिलता उसको, या फिर फॉर एग्जाम्पल कम से कम केरोसिन तो मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता है. अब ये सब प्रॉब्लम्स को लेके गरीब लड़का जो भूखा था, जो बीमार था, घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी सिस्टर पर्दा पहनती है और फिर पानी लाने के लिए जाती है, फिर खाना पकाने करेगा तो एक चूल्हे पे खाना पकाती हो. अब ये लड़का क्या करता है? ही डिसाइड्स टू डू सम डिसेंट वर्क. इसने डिसाइड किया कि अभी मैं कुछ करूंगा, सम डिसेंट वर्क. अच्छा, देन ही स्टार्ट सम एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री. कुछ एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री स्टार्ट करता है. कुछ भी हो सकता है, चलो इट कुड बी अ पोल्ट्री फार्म और व्हाट एवर, फॉर एग्जांपल लाइक एग्रीकल्चरल, कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाने वाला इंडस्ट्री. अच्छा, लेकिन जब लोगों को जॉब देने की बात आती है तो ही गिव्स जॉब्स टू बोथ मेल्स एज वेल एज फीमेल्स. दैट मीन्स इनडायरेक्टली चिल्ड्रन इज नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स. सबके लिए ओपन रखा है उसने जॉब्स. अच्छा, और फिर क्योंकि वो एक कंपनी चला रहा है तो फिर स्टाफ के लिए एक अच्छा खासा सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है वो, इसके अंदर वो लोग काम कर सकते हैं. ही हैज गॉट अ वेरी नाइस कंपनी जहाँ पे फिर आप देख सकते हो वहाँ पे कि लाइक वेरी नाइस इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी हैव. अच्छा, देन दे बॉन्ड अलोंग विथ ईच अदर वेरी नाइसली. अच्छा, उसमें बहुत सारे ट्रीज वगैरह प्लांट करके रखे, देयर इज लॉट ऑफ ग्रीनरी देयर. अच्छा, देन सपोज ही इज, अभी जैसे ही उसके कंपनी में प्रोडक्शन चालू होता है तो ही इज बिकमिंग वेरी रिस्पॉन्सिबल. रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है? देखो कि जब वो प्रोड्यूस कर रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है. ऐसे नहीं कि हमने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किया, अभी फिर वो कंज्यूमर कुछ भी करे, उसको कुछ डैमेज होता है तो उसको कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं. नहीं, when we are producing something, I am responsible for my country, I am responsible for all the natural resources. I should not damage or I should not simply waste those natural resources. So it's like responsibility. Acha, one more thing he has decided, children, कि he will not encourage any pollution at work. मतलब जहाँ पे वो प्रोडक्शन कर रहा है वहाँ पे वो पोल्यूशन को कंट्रोल करेगा, कुछ ना कुछ टेक्निक्स लाएगा. अच्छा, और ऐसे मेथड्स अपनाएंगे जिससे पोल्यूशन कम से कम हो. अच्छा, देन वो जो प्रोडक्शन कर रहा है ही इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी हार्म टू एक्वेटिक लाइफ. पानी में रहने वाले जो भी जीव जंतु है बच्चे लोग, उनको कोई भी डैमेज नहीं कराने वाला है. इसका मतलब ऐसे नहीं कि उसने कुछ प्रोडक्शन किया और फिर वो सब गंदगी नाले में छोड़ दी, फिर वो समुद्र में जाके वहां पे फिश वगैरह मर गए. नो. अच्छा, along with that children will also try to protect life on land. जमीन के ऊपर जो भी लिविंग थिंग्स है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा फिर. अच्छा, और ये सब करने के बाद फाइनली फिर क्या होगा? देयर इज पीस एट होम. सब शांत हो गया, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, पैसा आ गया, एजुकेशन मिलेगा. अच्छा, along with that हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, गरीब लोगों के साथ में मिलके पार्टनरशिप करके वो डेवलपमेंट करेगा. सबके साथ सबका विकास बोला था ना मैंने. अच्छा, अब याद करते हो कैसे? देखो बच्चों लोग, अगेन आई एम रिपीटिंग इट वंस. एक लड़का है जो भूखा है, जो बीमार रहता है, जो पढ़ा लिखा नहीं. उसकी बहन एक बुर्का पहन के पानी लाने के लिए जाती है. अच्छा, एक चूल्हे पे खाना बनाती है. अभी लड़के ने डिसाइड किया कि मैं एक डिसेंट काम करूंगा. एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री स्टार्ट करता है, मेल्स फीमेल्स दोनों को जॉब देता है, एक अच्छा खासा सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है प्रोडक्शन का, पोल्यूशन को कंट्रोल करेगा. अच्छा, पानी के अंदर जो लाइफ है उसको, या फिर जमीन पे जो लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करेगा. और अच्छा, इसके जरिए देयर इज पीस एट होम एंड वेरी इंपॉर्टेंटली गरीब लोगों के साथ में फिर वो पार्टनरशिप करता है. अच्छा, अभी इसी स्टोरी को सवाल ये आता है कि लाइक हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं. हाउ डू वी कन्वर्ट देम इनटू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. अच्छा, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दिस, हर एक जो पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे उसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या बोला बच्चों यहाँ पे कि देयर इज अ पुअर बॉय, एक गरीब लड़का है. तो दुनिया के सामने बच्चों लोग सबसे पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो आया था वो था नो पॉवर्टी. बच्चों, so many years we have been struggling to come out of this malaise of poverty. Children, there are lots of people in this world who still suffer from hunger.
they don't have shelter. अच्छा, then we cannot talk about development ना, कि अगर कुछ लोग हैं जो भूखे सो रहे हैं और फिर हम लोग बुलेट ट्रेन्स की बात करें, हम लोग स्मार्ट सिटीज की बात करें तो नहीं चलता है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट वांट टू लाइक यू नो वी जस्ट वांट टू वाइप आउट पॉवर्टी फ्रॉम अ कंट्री, कि बाकी लोगों का डेवलपमेंट का तो छोड़ दो, लेकिन कम से कम लोगों के पास इतना कैपेसिटी तो होना चाहिए कि वो अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके. अच्छा, तो उसके लिए अच्छा वह एक चीज अगर आपने देखी रहेगी बच्चों लोग, तो ये जितने भी गोल्स है, ये गोल्स किसके है? ये इंडिया के गोल्स नहीं बच्चों, ये दुनिया के गोल्स है. तो इंडिया जब भी अपना पॉलिसी फ्रेम करेगा तो इंडिया हैज टू मेक श्योर कि हम लोग इस गोल को ध्यान में रखे हुए अपने पॉलिसीज फ्रेम कर. जैसे कि नो पॉवर्टी लिखा है ना, तो फिर ऑलमोस्ट लाइक यू सी गवर्नमेंट गिविंग लॉट ऑफ फूड ग्रेन्स टू द पुअर पीपल थ्रू फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, राइट. अच्छा, या फिर दे माइट ऑल्सो गो टू गिव इन सम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लाइक मनरेगा का स्कीम्स आता है बच्चों लोग ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. तो ये पहला गोल है अपना, दैट इज नो पॉवर्टी. अच्छा, फिर उन्होंने बोला कि लाइक वो लड़का भूखा है, तो उसमें से एक दूसरा गोल तैयार हो गया, एंड दैट गोल चिल्ड्रन इज नोन एज जीरो हंगर. क्या अचीव करना चाहते हैं हम लोग? जीरो हंगर. हमारे देश में या फिर हमारे दुनिया में हम लोग चाहते कि कोई भी भूखा ना मरे. Almost like children, there was a news where I heard there are almost 40,000 children throughout the world who die due to hunger related diseases every day. I'm not saying every month, I'm not saying every year children, I say every day there are 40,000 children in the world who die because they don't get food to eat. So we want to achieve zero hunger, that minimum nutrition should be available to the children as well as to the aged, everyone. अच्छा, थर्ड वाला अपना पॉइंट क्या था चलो, that no one in the family is well. तो उसमें से अपना गोल क्या तैयार होता है? We are going to achieve what is called a good health and well-being. We want to provide good health to the people, well-being to the people. So we have got lots of programs which come out for good health and the well-being. It might be like mothers, if example maternal health care होता है बच्चों लोग. अच्छा, रूरल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, अर्बन हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं. ऑल दीज आर टारगेटेड टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गुड हेल्थ टू द पीपल. अच्छा, फिर उन्होंने बोला कि नो वन इज एजुकेटेड, तो उसमें से गोल क्या तैयार हुआ है? जो भी व्हाटएवर आई हैव रिटन इन द बॉक्स चिल्ड्रन, दैट आर दोस आर द गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. नो वन इज एजुकेटेड ना, तो हमारा गोल होता है बच्चों लोग क्वालिटी एजुकेशन टू द पीपल. When we talk about quality education, so government comes up with certain schemes na. Primary education has been made compulsory and free to the children in government aided schools, but at the same time children, we are not going to focus only on their quantitative education, we want quality education. अभी recently government ने नया education policy announce किया है, हाँ, तो उसके जरिए हम लोग quality education देना चाहते हैं बच्चे लोगों को. ठीक है, all those 4 goals are complete children. Then we come to the next one. मैंने बोला था कि लाइक हिज सिस्टर वेयर्स अ पर्दा. सिस्टर क्या पहनती है? पर्दा. पर्दा इज लाइक बुरखा. अच्छा, व्हाई डू दे वेयर पर्दा? आई एम नॉट टारगेटिंग ऑन एनी पर्टिकुलर रिलीजन और सो मच, बट वी ऑल नो कि लाइक व्हेन इट कम्स टू वुमेन वी ऑलवेज वांट टू कंट्रोल देम. हाँ, दे शुड कवर देयर फेसेस, बट डोंट यू थिंक कि लाइक फॉर एग्जांपल एवरीवन डिजर्व्स अ रिस्पेक्ट, एंड why only women? Nah, then men should also start wearing one, might be if they want to respect elders. Acha, it only indicates that we have got a lot of gender inequality. Males are always dominating, the females are given secondary position in the house. When it comes to education, when it comes to food, or when it comes to employment, it's always like male maharaja comes first. तो हम लोग चाहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी हो. देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेन एंड वुमेन. ऑल आर इक्वल. इक्वल एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन डिसीजन मेकिंग इन द फैमिली. दैट्स व्हाट वी वांट टू डू अचीव. अच्छा, वो पानी लाने के लिए बहुत दूर जाती थी, तो हम लोग गोल्स में क्या रखे बच्चों लोग यहाँ पे? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर एवरीवन. इसलिए देयर आर मेनी पीपल माइट बी जिनको किलोमीटर्स तक, मतलब फॉर एग्जांपल मीलों तक जाना पड़ता है क्योंकि उनको पानी नहीं मिलता है. अच्छा, एंड अलॉन्ग विद दैट क्लीन वाटर वी आल्सो फोकस टुवर्ड्स सैनिटेशन. सैनिटेशन चिल्ड्रन कुड बी लाइक क्लीनलीनेस. तो अपना स्वच्छ भारत अभियान,
Don't you think it goes in line with what is called as that sixth goal, na? Sanitation. We have almost made it sure that there is a toilet block in every house. तो गवर्नमेंट चलो टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसा भी देती है. इनफैक्ट लाइक आपको पहले टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करना होता है आपके घर के साइड में. अच्छा, उसका फोटो वगैरह अगर हम लोग गवर्नमेंट को देते तो गवर्नमेंट गिव्स ऑलमोस्ट कुछ 11-12 हज़ार रुपए का सब्सिडी मिलता है उस पर बच्चों लोग. अच्छा, देन सपोज द नेक्स्ट वन, शी वाज कुकिंग फूड ऑन चूल्हा. क्यों? क्योंकि घर पे एलपीजी का सिलेंडर नहीं आता था. तो गांव में अपने लोगों को देखा रहेगा जंगल में जाने का, लकड़ी लाने का, या फिर एग्जाम्पल की लाइक वो डंग केक्स यूज करते हैं हम लोग, लेकिन उससे फिर हम लोग कितना नेचर को नुकसान कराते. तो अभी अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. हैव यू हर्ड अबाउट वन स्कीम बाय नरेंद्र मोदी दैट इज कॉल्ड उज्ज्वला? Under that Ujjwala, they are distributing LPG cylinders and the gas kits to the poor people in the villages. Okay, so almost like for example, like they will be able to cook or use some affordable and clean energy without any pollution. अच्छा, अभी काम की जब बात आ गई, he has decided to do some decent work. तो ठीक है, decent work, and through that we are going to achieve some economic growth. But if every person goes to do some decent work, automatically children, your own development will contribute to the development of the nation. बच्चों, हम लोग को इंडिया को डेवलप करना मतलब कुछ अलग से काम नहीं करना होता है. अगर आप अपना खुद का डेवलपमेंट करोगे तो इंडिया का डेवलपमेंट तो ऐसे ही हो जाएगा, राइट? देन ही हैज स्टार्टेड सम एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री. तो हमारा गोल क्या बनता है बच्चों लोग यहाँ पे? इंडस्ट्री क्रिएशन. चिल्ड्रन, वी वांट एंटरप्रेन्योर्स. हम लोगों का प्रॉब्लम क्या रहता है बच्चों लोग कि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मेरा पढ़ाई खत्म होगा उसके बाद में मैं एक 25,000 का नौकरी करूंगा, लेकिन तुम ये नहीं सोचते हो कि मेरा पढ़ाई खत्म होगा उसके बाद में मैं एक बिजनेस चालू करूंगा और मैं 25 लोगों को खुद ही जॉब दूंगा और उनको मैं पगार देने वाला हूं करके. डू वी थिंक दैट वे? नो, क्योंकि हम लोग हमारे ड्रीम्स को लिमिट में रखते हैं. वी हैव लिमिटेड एम्बिशंस और वी आर नॉट वेरी एम्बिशियस पीपल लाइक ना. तो हम लोगों को बच्चों एंटरप्रेन्योर चाहिए. वी वांट टाटास एंड वी वांट अंबानीज टू कम अप, राइट ना. उन लोगों के ऊपर हम लोग कितने साल तक डिपेंडेंट रहेंगे? वी वांट न्यू एंटरप्रेन्योर्स. नाउ फॉर दैट वी नीड टू क्रिएट इंडस्ट्रीज. देन 10th वन चिल्ड्रन, उसने क्या डिसाइड किया था? मेल्स और फीमेल्स को दोनों को भी जॉब्स देगा. सो व्हाट वी वांट टू अचीव चिल्ड्रन देयर? वी वांट टू रिड्यूस दैट इनइक्वालिटी. रिड्यूस इनइक्वालिटी. Here children, आप बोले सर थोड़ी देर पहले भी एक पॉइंट आया था, जेंडर इक्वालिटी. यस, here I am talking about reduce inequality and it could be in any field children, ना, in any particular field. तो हम लोग inequality को reduce करना चाहते. अच्छा, सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड सिटीज एंड कम्युनिटीज. हम लोग ऐसा एनवायरमेंट बनाना चाहते हैं जो फ्यूचर में भी रहेगा. ऐसे सिटीज बनाएंगे तो गवर्नमेंट का स्मार्ट सिटीज का प्रोजेक्ट आपने सुना रहेगा. एंड कम्युनिटीज शुड ऑल्सो बी सस्टेनेबल. चिल्ड्रन, द नेक्स्ट गोल दैट वी हैव इज दैट कि प्रोडक्शन करने वाले लोगों को और कंजम्पशन करने वाले लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है. प्रोडक्शन करते वक्त वेस्टेज नहीं करना है, नेचर को डैमेज नहीं करना, और कंजम्पशन करते वक्त भी आप रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करोगे कि जो भी है सब खुद ही खत्म नहीं करोगे. आने वाले जनरेशन से उनके लिए कुछ बचा के रखना है आपको. अच्छा, देन द नेक्स्ट टारगेट फोकसेस ऑन क्लाइमेट चिल्ड्रन. वेरी इंपॉर्टेंट. वो ईयर्स हमने ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम सुना है, तो सब लोग अगर पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, वी कुड हैव समथिंग लाइक नो पॉल्यूशन टैक्स. आप पॉल्यूशन कर रहे हो या तो पॉल्यूशन को रोको या फिर पॉल्यूशन का टैक्स पे करना. बिकॉज चिल्ड्रन वी नीड टू फोकस ऑन क्लाइमेट. तो कहीं पे भी कुछ भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आते तो आपको पता है पहले उनको ग्रीन क्लियरेंस लेना पड़ता है ना, एनवायरमेंटल क्लियरेंस. जैसे आरए कॉलोनी वी सॉ कि लाइक दे आर सपोज टू मेक दैट मेट्रो, और उसके लिए हमने कितने सारे पेड़ों का कत्ल किया ना. तो इतने सारे पेड़ों को डैमेज करके तुम्हारे डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है फिर? बिकॉज इट इज गोइंग टू कॉज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स टू द क्लाइमेट. वी सी दोज अनसीजनल रेन्स, कभी भी बारिश होते हैं बच्चों लोग. अच्छा, वर्ल्ड के टेम्परेचर्स बढ़ते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ओके, या फिर ओजोन जो डैमेज हो रहा है, ये सब चीजों को अगर हम लोग कंट्रोल करना चाहते तो क्लाइमेट को कंट्रोल करो. अच्छा, देन वी ऑल्सो ट्राई टू प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर. पानी के अंदर बच्चों जो भी एक्वेटिक लाइफ है उनको भी प्रोटेक्ट करो. हम लोग सुनते हैं वहां पे कोई जहाज था, अंदर ऑयल के कंटेनर्स थे, अंदर ही टूट गया है, हजारों लीटर तेल डैमेज हो गया वहां पे, या फिर तेल स्पिल हुआ है. व्हाट आर डैमेज दैट इज गोइंग टू कॉज टू द aquatic life? So we need to focus on them. Not only below water children, we also will protect the life on land.
अच्छा, दैट विल गिव अ लॉट ऑफ पीस एंड जस्टिस टू द पीपल। लोगों को शांति से रहना है और मेक इट श्योर दैट पीपल गेट जस्टिस, न्याय और शांति बना के रखनी। एंड जस्ट टू एंड विथ चिल्ड्रन, इनका लास्ट वाला जो गोल है, इट्स लाइक पार्टनरशिप टू अचीव गोल्स। कोई भी देश बच्चे लोग सेल्फ रिलायंट नहीं होता। हम लोग बोल सकते हैं आत्मनिर्भर, लेकिन आप एक्चुअली आत्मनिर्भर नहीं होते। थोड़ा ना थोड़ा किसी के साथ पर डेवलपमेंट करना और डिपेंड करना पड़ता। कोई बुरी बात नहीं होती उस पर। सो विल डिपेंड अपॉन ईच अदर, विल हेल्प देम टू ग्रो एंड दे विल हेल्प अस टू ग्रो। तो सबके साथ सबका विकास। तो बहुत सारे कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप्स आप देख सकते हो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है, सोलर एनर्जी के लिए हम लोग बहुत सारे देशों के साथ पार्टनरशिप्स करते हैं और फिर वो लोग आके हमारे देश में कुछ बिजनेस सेटअप करके, कुछ नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करके हमारे देश का भी ग्रोथ होता है, प्लस दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस, राइट। सो यू शुड बी एबल टू मेमोराइज दिस गोल चिल्ड्रन, क्योंकि हम लोग को पता है कैसे न कैसे करके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता ही है। आपको बोला जाएगा सीधा एक्सप्लेन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एनी 7, एनी 10, एनी 8 ऐसे रहेगा, तो आप इसमें से कुछ लिख सकते हो। क्लियर? यस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसमें से कुछ गोल्स को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। सो thank you very much. Bye everyone. Take care. See you in the next lecture.